Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now interview season is on. First there is interview for IDBI Assistant Manager, and very soon you may be appearing for RRB interviews and then SBI interviews and IBPS interviews. Sometimes some ticklish questions are asked in interview, and the candidate capability of tactfulness is checked by such question. And one such question can be how to reduce price of petrol and diesel. Now this is a very difficult question to answer. Why? Because even government is not having any answer how to tackle it. On one hand, government is not willing to sacrifice the taxes. On the other side, international prices are rising. So what is the remedy and what should be our answer? The best course is that we should use the information that is available on official platforms. Now on this issue, Reserve Bank of India has given an advice. This advice is that the government should consider reduction of taxes on petrol and diesel. So this can be our answer. The moment we give this answer, the counter question can come: if government reduces the taxes, how they will manage their finances and what is the remedy of that. So in that context, you have to reply that since prices are going behind a level and it is putting inflationary pressure on the economy, government may consider reduction of taxes and borrow the money for the time being that can be repaid when cool off of prices happens. So this is one option. This was adopted by previous governments also, and now government is also pushed through that level. Yesterday the international crude price crossed $85 per barrel, and at one time it touched $120 per barrel in the previous government regime. So if the prices goes on rising, in that pretext, government has to reduce the taxes, government has to borrow, and cool off effect is to be done. This can be a tactful answer, but we should always take the stand that is official. Since RBI has said this, we can incorporate this reply in our reply. Rest is your choice. God bless you all. अब हम यही बातें हिंदी में करेंगे. अब इंटरव्यू सीजन स्टार्ट हो रहा है. आईडीबीआई का इंटरव्यू है, इसके बाद आरआरबी के इंटरव्यू आ जाएंगे, फिर स्टेट बैंक भी है, फिर आईबीपीएस भी है. इसमें कुछ टिकलिश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका मकसद होता है आपकी टैक्टफुलनेस को चेक करना. तो जब ऐसे टिकलिश क्वेश्चन होते हैं तो हमें बहुत ही टैक्टफुल आंसर इसमें देना चाहिए. जैसे आज के प्रिटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस कैसे घटाई जाए. जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट इस समय कैच 22 सिचुएशन में है, वो टैक्स रिड्यूस नहीं करना चाहती. एट द सेम टाइम इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती चली जा रही है. ऐसे में कस्टमर के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, और जब पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इकोनॉमी पर लाता है. अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये प्राइसेस घटानी पड़ेंगी. तो इसके लिए आरबीआई ने क्या सजेशन दिया है? आरबीआई ने सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने चाहिए, और इसीलिए हमारा आंसर यदि हम इसी लाइंस पे देते हैं कि वन रेमेडी है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस घटाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस को रिड्यूस करना उसके हाथ में नहीं है. अब जैसे ही हम ये आंसर देते हैं कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस घटा दे, तो काउंटर क्वेश्चन आएगा कि अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस घटा देगी तो अपना खर्चा कैसे चलाएगी. इसके अंदर यदि हम देखें जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे अपना खर्चा चलाती थी. नेचुरल है, बारो करती थी या सब्सिडी भी देती थी कई बार पेट्रोल डीजल के ऊपर. तो जो कंज्यूमर है उसको रिलीफ देना आवश्यक होता है, अदरवाइज जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है. तो यहाँ हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसके अंदर गवर्नमेंट बारो कर सकती है, और जब कूल ऑफ हो जाएगा प्राइसेस तो उस बारोइंग को वो पे कर सकती है. तो टैक्सेस को रिडक्शन करने से जो लॉस होगा रेवेन्यू का, वो उधार के जरिए पूरा किया जा सकता है.
पर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट को डिसीजन तो लेना पड़ेगा। $85 पर बैरल इस समय प्राइस हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। एक समय में ये $120 क्रूड की प्राइस हो गई थी। तो उस समय की सरकार ने भी सब्सिडी को जारी रखते हुए और बोरिंग करके उस समय की क्रिटिकल पोजीशन में लोगों को फ़ायदा पहुंचाया था, और यही इस गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट उस कॉर्नर की तरफ पुश हो रही है जहां उसको इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि जो इकोनॉमिक होती है वो अपने डिसीजन खुद कराती है। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं, पर जब इकोनॉमिक कंपल्शंस होती है तो हमें कंज्यूमर का हित भी देखना होता है, और कुछ अपने जो खर्चे हैं वो पोस्टपोन करने ही पड़ते हैं। तो ये एक टैक्टफुल आंसर हो सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने ये सुझाव दिया है। तो अगर हम उसके साथ सिंक करके आंसर देते हैं तो इंटरव्यू में हमें नंबर दिलवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।